Good morning, students. This is Professor Sonali Bhar. I am going to teach you the two subjects in MSc IT, data science and cloud computing. So today is the first lecture, which is the introduction lecture about our subjects. So total we have four subjects: research in computing, data science, cloud computing, soft computing and techniques. In four subjects you have total 4 practicals, each subject having practicals, and total practical numbers are 10. So you have to perform 10 practicals for each subject. Then for each subject you have total 5 units. Okay, so each subject total units are 5 and 10 practicals. So the first subject is data science. The code is 102. In data science, there are total 5 units. So we are going to learn in data science, which is the depth understanding of the key technologies in data science. Then business analysis technique like data mining, machine learning, visualization technique, etc. Then practice problem analysis and decision making. So before understanding the data science, you need to study about statistics. So statistic maths and statistic techniques you need to study, then you will easily understand what is data science. Okay, so data science is basically combination of database and some algorithms. So the data science is used for to storage purpose, to prediction purpose, and to store the alpha algorithms in a different kinds of data. Okay, so ये यूनिट में हम लोग सीखेंगे डेटा साइंस टेक्नोलॉजी स्टैक, लेयर फ्रेमवर्क, बिजनेस लेयर एंड यूटिलिटी लेयर. सो देर आर टोटल 4 चैप्टर्स इन यूनिट नंबर 1. Unit number 2 is based on the management layer, including 2 chapters, and unit number 3 is total 3 chapters: assess super step, process super step, and transfer super step. Unit number 5, transport super steps and organize report super steps. So total 5 units are there, and in whole week you will get the 4 lectures of data science and 4 lectures of cloud computing. In cloud computing also you will get the total 5 units. So in cloud computing you are learn how to use the cloud services, implementation, virtualization, implement task scheduling, then build private cloud, and impact of engineering, legal and social issues, etc. So basically we are going to study 2 subjects, one which is based on the database and algorithm, and second which is based on the virtual storage. Okay, for each subject you have total 100 marks, 40 marks for internal and 60 marks for theory paper. Okay, and practicals for the 50 marks. So total each subject weightage is 150 marks. So now we are going to study the short information about data science. तो data science basically क्या होता है, तो आप लोगों ने अभी तक ये एक चीज़ सीखी होगी कि जब भी आप लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या फिर कोई भी ऐसे फाइल क्रिएट करते हो जिसको आपको स्टोर करना है, सो यू नीड अ डेटाबेस सिस्टम विच इज़ द पर्पसली स्टोर द इंफॉर्मेशन. तो इसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि जो भी फाइल क्रिएट करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्रिएट करते हो, उसको आप लोग स्टोर करते हो. स्टोरेज इसके लिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप लोग स्टोर नहीं करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जो भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो सब डिलीट हो जाएगा. सो दैट पर्पस वी आर यूजिंग द डेटाबेस फॉर ईच एप्लीकेशन. ठीक है, तो डेटा साइंस ये उसका एडवांस वर्जन है. डेटा साइंस के अंदर आप लोग सीखोगे कि
कौन से एल्गोरिदम थ्रू आप लोग डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक जब भी आप लोग डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो उसकी आइडिया आपको पहले से रहती है कि मुझे इस तरीके का टेबल क्रिएट करना है और वो टेबल के अंदर इतने रोज़ रहेंगे, इतने कॉलम्स रहेंगे, एक्सेट्रा। आप लोग जब डेटा साइंस के ऊपर काम करते हो तो आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स रहेंगे टू प्रिडिक्शन पर्पस। तो प्रिडिक्शन इन द सेंस व्हाट कि अगर सपोज़ आप लोग डेटा साइंस किसी मार्केट के लिए यूज़ कर रहे हो कि सपोज़ आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, तो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ आप लोग बनाओगे वो स्ट्रैटेजीज़ मैथमेटिकली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी एडवर्टाइज़ बना दी और वो प्रोडक्ट को सेल किया। आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट का मार्केट रेट क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर कितना जानते हैं और उनको कितना रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए, और ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया है ये फ्यूचर में कितना आपको बेनिफिट करके देगा। तो ये सब जो कैलकुलेशन होता है इसके पीछे हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के अंदर आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम सीखोगे जो आपको बताएंगे कि डेटा जो है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे आपको प्रेडिक्ट करना है। ओके, देन नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड सर्विसेज रहते हैं। अभी क्लाउड यानी आप लोग ऐसे मत सोचोगे क्लाउड यानी बादल, तो वैसे नहीं। क्लाउड यानी वर्चुअल सर्विसेज जो आप लोग वर्चुअली डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो। वर्चुअली डेटा को स्टोर करने की नीड क्यों रहती है? बिकॉज सपोज़ अगर आप लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट देखते हो कि अमेज़ॉन की वेबसाइट पे डेली आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑफ़र आता है, ठीक है। अगर कोई फेस्टिवल रहा, कोई बड़ा फेस्टिवल लाइक दिवाली है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ऑफ़र्स मिलते हैं और मैक्सिमम लोग वहाँ से जो है लॉगिन करते हैं। तो एट अ टाइम अमेज़ॉन के एक ही सर्वर के ऊपर जब भी बहुत सारे चीज़ों का लॉगिन होता है तो ऐसे लॉगिन जब होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो आपका मेन सर्वर है वो मेन सर्वर के ऊपर आपका लोड आएगा। सपोज़ अगर आप लोग अमेज़ॉन की कंसिडर कर रहे हो वेबसाइट है और वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के अंदर एट अ टाइम एक ही टाइम पे अगर मिलियंस लोग लॉगिन कर रहे हैं तो वो जो लॉगिन रहेगा इससे अमेज़ॉन का जो मेन सर्वर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा या फिर लोड जनरेट होगा, इससे वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे अमेज़ॉन की सर्विसेज क्या यूज़ करती है? क्लाउड क्या करता है? आपको वर्चुअली सर्वर प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको वर्चुअली सर्वर प्रोवाइड करेगा। इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको कभी भी सर्वर लॉस होने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, आपका डेटा कभी भी लॉस नहीं होता, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको एक सर्विस प्रोवाइडर से मिलती है। सर्विस प्रोवाइडर लाइक AWS, अमेज़ॉन वेब सर्वर्स, ये खुद का उनका क्लाउड है। ये क्लाउड आपको परचेज़ करके लेना पड़ता है। तो परचेज़ करके लेना इन द सेंस व्हाट कि आपको उनके पास से वर्चुअल एक स्पेस को ख़रीदना पड़ता है। वो जो स्पेस रहेगा उसके अंदर आपका जो डेटा रहेगा, जो मैक्सिमम आप लोग स्टोर करना चाहते हो वो डेटा आप लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और अगर इजी एग्जांपल लेना है क्लाउड कंप्यूटिंग का तो सबके पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, हम लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। अगर किसी ने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो एक बार ओपन करके देखिए। आपका जो जीमेल आईडी रहता है या फिर जो आपका जीमेल रहता है उसके अंदर आपको गूगल ड्राइव मिलेगा। गूगल ड्राइव के अंदर जब भी आप लोग जीमेल को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो आपको 50 GB तक का डेटा फ्री मिलता है, कि यानी आपका जो गूगल ड्राइव रहेगा मोबाइल के अंदर आप लोग उसको 50 GB तक फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आपका गूगल ड्राइव 50 GB तक फुल हो जाता है और उसके बाद भी अगर आपको गूगल ड्राइव के ऊपर कोई वीडियोस, कोई आपकी इमेजेस, पिक्चर्स अगर स्टोर करके रखने हैं तो आपको उसके लिए जीमेल से या फिर गूगल से स्पेस जो है गूगल ड्राइव का वो ख़रीदना पड़ता है। जैसे आप लोग नॉर्मली मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे आप लोग उसको रिचार्ज करके आपका जो स्पेस है या फिर आपका जो स्टोरेज है उसको आप लोग ख़रीद सकते हैं। उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी वर्चुअली आपके लिए सर्वर जो है काम करेंगे, आपका डेटा सर्वर के अंदर स्टोर रहेगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन दोनों सब्जेक्ट का समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ध्यान देना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिक उसके कंसेप्ट क्या है, यूनिट नंबर कितने हैं,
ये सारी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। हम लोग कल से जो है हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस। डेली जो है आपको वीक में आपके 4 लेक्चर्स रहेंगे। डेली आपको 2 लेक्चर्स आएंगे, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का रहेगा और एक डेटा साइंस का रहेगा, या फिर अल्टरनेट आएगा, बट आपको वीक में 4 लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप सबको उसको कंपलसरी देखना है। लिंक आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगी।